Welcome to LIS Talks. In today's video, we are going to discuss a very important topic, that is information intermediaries. We will also learn about its characteristics and functions. So before we start, we shall understand the meaning of information intermediaries. So, a group of experts and institutions who or which could serve as a vital link between users and their specific information needs. मतलब एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप हो सकता है ये, या फिर इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं जिनका काम होता है यूजर्स और उनकी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड्स हैं उनके बीच में एक लिंक की तरह काम करना. So these groups of experts or institutions are termed as information intermediaries. In other words, intermediaries are experts who serve as an important link between users and information, who collect relevant information for users, process and disseminate them. In other words, intermediaries का मतलब है ये वो experts होते हैं जिनका काम होता है यूजर्स और इंफॉर्मेशन के बीच में एक लिंक की तरह काम करना, जिनका काम होता है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना और यूजर्स को डिसेमिनेट करना. So, in a few words, we can say information intermediaries act as an interface between producers and users of information. जो इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरीज होते हैं वो किसका काम करते हैं? एक इंटरफेस का काम करते हैं. So let's move ahead. Information intermediaries are basically of two types. First type constitutes information brokers, information consultants, online vendors, etc., who charge a fee for their services as a business venture, being motivated to earn a profit. जो पहली कैटेगरी है वो कैटेगरी है जिसमें इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरीज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए चार्ज करते हैं. उसका एग्जाम्पल्स है आपका इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स, इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट्स, ऑनलाइन वेंडर्स. Second is reference librarians and information officers and a few other groups and agencies who offer some of the current functions of the information intermediaries, and they do not charge a fee as they are motivated by a spirit of service. कुछ लोग होते हैं जो इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं. दे डू इट एज अ मोटिवेशन बाय अ स्पिरिट ऑफ सर्विस, मतलब लोगों को सेवा देने के भाव से वो काम करते हैं. तो उनमें एग्जाम्पल्स है आपका रेफरेंस लाइब्रेरियंस, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एंड देयर आर अदर एजेंसीज. तो ये दो कैटेगरी हैं आपकी. Apart from that, in recent decades, new types of information intermediaries have also cropped up, such as invisible colleges, technological gatekeepers, and information filters. अभी लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरीज हैं उसके और नए एग्जांपल्स निकल के आए हैं, जैसे कि इनविजिबल कॉलेजेस हो गई आपकी, जहाँ पर लोग ग्रुप बनाते हैं having same kind of expertise in the subjects and start providing the information to the users. Apart from that, technological gatekeepers and information filters. There are experts, systems, and internet services that are also playing the role of information intermediaries. Apart from these types of information intermediaries, groups such as extension workers, paramedical professionals, block development officers have also been offering a highly specialized information services in rural and semi-urban settings as agents of information transfer, particularly in the Indian context. ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरीज के. Now we will talk about characteristics of information intermediaries. Information intermediaries की क्या characteristics होती हैं? The value of information intermediaries lies in the extent of their ability to satisfy the requirement of the producers and consumers of the knowledge. जैसा कि हमको पता है इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरीज एक लिंक की तरह काम करते हैं. तो लिंक का मतलब है वो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी रखने चाहिए. Second is transfer the products and services between the producers and consumers or users of the information. They shall have a capability and ability to transfer the products and services. मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं उनको सर्विसेज और प्रोडक्ट्स उनके ट्रांसफर करने की एबिलिटी भी उनके पास होनी चाहिए. In bringing together the producers and users of information, the intermediaries should have, apart from those abilities, कुछ और यहाँ पर characteristics दे रखी हैं. पहला है knowledge of the sources of information
and how these sources can be used to extract information according to requirements. उनके पास नॉलेज होनी चाहिए कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरीज का जो मेन काम है वो ये है कि जो इतना ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स किस सोर्स से लेना है और किस तरीके से लेना है. दे शेल हैव नॉलेज ऑफ द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर. सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को निकालने के अलावा उनको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए टेक्निकल एस्पेक्ट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए. थर्ड इज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इन विच दे आर टू ऑपरेट. जिस सब्जेक्ट के साथ वो डील कर रहे हैं उनको उस सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए. The awareness of the user's characteristics and also the environment under which the users operate in the context of present ICT development. जिस यूजर की नीड्स को फुलफिल करना चाह रहे हैं उनकी भी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस तरीके के कंटेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किस तरीके की इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं और किस इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू देम वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. मतलब जो इन्फॉर्मेशन इंटरमीडियरीज का काम है वो जिसको यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं अगर वो ऐसे वे में जिस सपोज करो कोई यूजर है जो नहीं देख सकता तो उसको हम रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करा सकते. या फिर कोई ऐसा यूजर है जो पढ़ नहीं सकता सुन सकता है केवल तो उसको हम रिटन मटेरियल नहीं दे सकते. ऐसा इंसान जो सुन नहीं सकता उसको हम रिटन देंगे, उसको ऑडियो काम नहीं आ सकती है. तो वी हैव टू डील विद द यूजर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो. एंड द लास्ट इज नॉलेज ऑफ द इंटरनेट सोर्सेज एंड सर्विसेज. और जो इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरीज होते हैं उनको इंटरनेट सोर्सेज और सर्विसेज की भी नॉलेज होनी चाहिए. सो नेक्स्ट इज from the point of view of effective transfer of information, certain specialized skills are also required. अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरीज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए. अभी हम बात करेंगे इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है. सो पहली है हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, वेदर दे आर रिटन और ओरल. अच्छे से हमको लिखना आना चाहिए और अच्छे से हमको बोलना आना चाहिए. Mental capability to analyze and interpret users' needs exactly. We should be capable enough to analyze and interpret users' needs exactly. यूजर को क्या चाहिए वो हमको समझ में आना चाहिए. Skills for information retrieval such as search tactics and techniques. अभी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कहाँ कहाँ से करना है, रिट्रीव का मतलब किन किन सोर्सेज से हमको वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और उनको किस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वो भी हमको पता रहना चाहिए. Technical skills such as data entry operations, handling of software packages, knowledge about the search engines and their features relating to specific subject of activity and searching on the net. The last is knowledge of knowledge industry. जहाँ से हम sources ले रहे हैं, evaluate कर रहे हैं to get the information, we should also have the knowledge of that industry. Overall, to make effective transfer of the information to the users need. So we shall have a good effective communication skills, mental capability to analyze and interpret users needs exactly. स्किल्स भी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए और टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हमको आने चाहिए. बाकी इफ वी टॉक अबाउट पर्सनालिटी ट्रेट्स जो किसी भी इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरीज के अंदर होनी चाहिए, पहली है हमारी इंट्यूटिव होना चाहिए. वो इंट्यूटिव का मतलब है दे शेल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग लेवल. वो आसानी से लोगों की बातों को, इट मीन्स यूजर्स की बातों को अच्छे से समझ पाए जिससे कि वो उतने ही अच्छे से इन रिटर्न इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा सके. दे शेल बी इंक्विजिटिव. इंक्विजिटिव मतलब क्यूरियस. दे शेल हैव ऑल्सो बी क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स. ऐसा नहीं है कि हाँ बस हमने बस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई छोड़ दिया. जब तक हमको खुद इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम अच्छे से हम उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं. दे शैल बी एक्सट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट मीन्स दे शैल बी आउट गोइंग. दे शैल बी सोशलाइजर. मतलब उनको लोगों के साथ घुलने मिलने की आदत होनी चाहिए. दे शैल बी इंटरेस्टेड इन अदर्स. जब भी हम सामने वाले से बात करते हैं या फिर यूजर हुआ इन्फॉर्मेशन जिसको चाहिए उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वी सेल सो इंटरेस्ट सो दैट दे कैन ऑल्सो be 100% attentive towards us. We say information intermediaries should be emphatic. Emphatic बोले तो energetic होना चाहिए. They should be inquiring. If you cannot understand exactly in the first time कि यूजर को चाहिए क्या, we shall inquire in the other simpler ways जिससे हम आसानी से समझ जाएं कि एग्जैक्ट उसको क्या चाहिए हमसे. सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंड दे शैल हैव
a good knowledge of technical aspects to